ایک میری چھوٹی سی بیٹی ہے یہاں پہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے پہلے بات میں مسرت کیا نام آپا ہے کو میری ان کی بیٹی سیٹ کا؟ تک پہنچا کر آتی ہوں پلیز. سترہ، آپ نے آدھا منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ میرا چہرہ جلا ہوا ہے. جلا ہوا ہے؟ آپ نہیں چاہتی کہ لوگ دیکھیں؟ نہیں. آپ نہیں چاہتی. کس نے جلایا یہ آپ کا چہرہ؟ لڑکے نے. کس لڑکے نے؟ ہمارے محلے میں رہتا تھا. کیوں جلایا اس نے؟ شادی کا کہہ رہا تھا. آپ سے؟ جی میں نے انکار کر دیا تو اس نے میرے پہ تیزاب پھینک دیا. تیزاب پھینک دیا اس نے صرف اس بات پہ؟ جی. آپ نے پوچھا کبھی بعد میں کہ کیوں پھینکا؟ میں نے ان کے گھر والوں سے نہیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اس کے گھر والوں سے. جب یہ سلسلہ کیا کسی نے لوگوں نے تانا تو نہیں دیا کہ آپ کا بھی کوئی قصور ہوگا؟ دینے والے تو دیتے ہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہمارا دل صاف ہے. صرف انکار ہی کیا تھا، انکار کرنے پہ اس نے تیزاب پھینک دیا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کے والدین تک وہ رشتہ لے کر آیا تھا؟ میری شادی ہوئی بھی ہے، میرا 4 سال کا بیٹا ہے ایک. جی. اور اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ آپ سے؟ میری ڈیورس ہو گئی تھی، میرے شوہر کام نہیں کرتے تھے تو وہ لڑکا میرے پیچھے لگ گیا کہ مجھ سے شادی کرو. میں جاب کرتی تھی، میرے والد نہیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، امی ہیں اور ہم 7 بہنیں ہیں. تو وہ لڑکا پیچھے لگ گیا، بولا مجھ سے شادی کرو، مجھ سے شادی کرو. میں نے کہا میں جاب کر رہی ہوں، کما رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کو خود پال لوں گی، مجھے شادی نہیں کرنی ہے. ایک ہی بیٹا ہے؟ جی. اچھا. تو میں نے منع کر دیا، پھر بھی اس کے باوجود اس نے میرے پہ تیزاب پھینک یہ دیا. اس نے کہاں پھینکا آپ پہ؟ میں جاب پر جا رہی تھی رمضانوں میں صبح 6 بجے. کتنے سال کی بات ہے؟ 1 سال ہو گیا، پچھلے سال کی بات ہے. رمضان میں؟ جی. میں جاب پر جا رہی تھی، میری چھوٹی بہن میرے ساتھ تھی تو وہ آیا، اس نے مجھ سے کہا مجھ سے شادی کرو گی؟ بازار میں؟ جی. میں نے انکار کر دیا، اس نے میرے چہرے پہ تیزاب پھینکا اور وہاں سے وہ بھاگ گیا. آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ کون لے کے گیا ہسپتال؟ میں خود گئی تھی خود گئی ہسپتال؟ جی. میری چھوٹی بہن میرے ساتھ تھی، میں پیدل گئی، وہاں ہاسپٹل قریب تمہیں تھا. راستے میں کسی نے، کسی مرد کے بچے نے، کسی ایسی ماں کے بیٹے نے، کسی نے مدد نہیں کی کہ اس کے منہ پہ تیزاب گرا ہوا ہے، میں اس کو موٹر سائیکل پہ اپنی گاڑی میں گود میں اٹھا کے اسپتال لے جاؤں؟ کسی نے نہیں. کوئی نہیں آیا؟ ایک آدمی میرے برابر میں کھڑے تھے، ان کے اوپر میں نے صرف ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے دور ہو گئے. خدا، ہمارے اندر سے نا مجھے لگتا ہے انسانیت ختم ہو گئی. میں وہاں سے خود پیدل چل کے ہاسپٹل گئی تھی. ڈاکٹر نے بھی مجھے بولا کہ یہ پولیس کیس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سول ہاسپٹل جاؤ. پھر وہاں سے ہم ہاسپٹل میں گئے تھے، میری امی مجھے لے کے گئی تھی. ایک تیزاب منہ پہ گرا ہوا اور تم جگہ جگہ سے اس لیے پھر رہی ہو کہ تمہارا علاج بھی کوئی نہیں کر رہا اور ساتھ بھی کوئی نہیں جا رہا. کوئی نہیں گیا ساتھ، میری امی اور میری بہنیں مجھے ایمبولینس میں لے کے گئی تھی. بلال بھائی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، چہرے کا جو تکلیف ہے نا، چہرے کا جو زخم ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، جو میرے اپنے لوگوں نے اس کے دل پہ زخم لگائے اس کا مداوع کیسے ہو پائے گا؟ اگر تمہیں وہ شخص ملے جس کو تم نے تیزاب اپنے چہرے پہ گرنے کے بعد پکڑنے کی کوشش کی اور تو اس نے چھڑا لیا اپنے آپ کو، اس کو کیا کہو گی؟ مجھے اسے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ سزا دیتا ہے، انسان نہیں دیتا. اسے اللہ سزا دے گا، اس نے جو کیا ہے اس کی سزا اللہ دے گا، ہم انسان نہیں دے سکتے. تم نے کوئی بدلہ نہیں لیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ لوگ اسے مار رہے تھے تو میں نے کہا اس کو چھوڑ دو. میں نے جو کہا لوگ اس کو مار رہے اللہ تھے وہ سزا تمہاری دے گا. مدد نہیں کر رہے تھے؟ اس کو مارنے والوں نے بھی تمہاری مدد نہیں کی؟ کسی نے نہیں کی. مار کے اپنی ہم غیرت دکھا دیتے ہیں، مار کے اپنے مرد ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک بے لاچار، ایک تکلیف زدہ عورت جو اس وقت پھر رہی ہے اپنی مدد کے لیے، ہم اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے. یہ ہم بے حس قوم ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم امت محمدی ہیں. یہ سوال مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے یا خود سے پوچھنا ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گی اس شخص کے لیے، خدا نہ خاصہ اس جگہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن بھی ہو سکتی تھی، یا تب بھی آپ کاندھا چھڑا لیتے. آپ کا نام کیا ہے میری بہن، پلیز بتائیں گی؟ نورین. نورین، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میں روٹی کچن میں نا روٹی پکا رہے تھے تو توا سلپ ہوا تھا نا، جیسے ابھی بلال بھائی بتایا تھا، تو اس طرح سے توا سلپ ہوا تھا، گیس کا پائپ کٹا تھا نا تو اس میں آگ لگ گئی تھی، اس سے جلی تھی.
तवा स्लिप हुआ, गैस का पाइप कट गया, वो जी, आग गरम भड़क था। उठी, उससे आपका जी। पूरा चेहरा और जी जिस्म का भी कोई हिस्सा सारा ये सब आपका जला, काफी। पूरी बॉडी जली है इनकी, आधा। आधी बॉडी जली। उसके बाद ये लोगों कान का वान का रिएक्शन तो बताएं वैसे- कैसा था जब आपके साथ, क्योंकि ये खुदा न खासा किसी ने किया नहीं और अस्पताल में- आपने अपनी मर्जी से भी नहीं किया। नहीं, मैं अस्पताल में ज़्यादा रही हूँ। अस्पताल में ज्यादा जी, रही, सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल। जी, डॉक्टरों के रिएक्शन कैसे थे? नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छी तरह आपको हैंडल किया? बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सही थे डॉक्टर लोग। एक बहुत ज़ाती सी बात पूछ सकता हूँ आपसे, जी, जब ये हादसा नहीं हुआ था तो आप बाहर निकलती थी, लोगों से मिलती थी, एक इत्मीनान होता होगा ना अपने पे। हालात कुछ अब ऐसे कैसा थे होता ना, है? मतलब नहीं चल फिर अब सकते मुझे थे। ये बताइए कि अब जब निकलती हैं, अब तो माशाल्लाह से चल फिर सकती हैं सब, अब लोगों का आपको देख के रिएक्शन क्या आता है? क्या कोई आपसे आँख चुराता है? कभी कोई आपको कहता है कि इसको मेरे सामने से हटा दो? क्या इस तरह की कभी कोई बात सुनने को मिली? कुछ कुछ होता है, लेकिन फिर चुपचाप से सीधे चले जाते हैं बस। जैसे अभी इन्होंने बताया, इसी तरह से कुछ कुछ होता है लोगों का आपा, रवैया। जब कोई ऐसा शख्स कहता है तो आपके दिल पे उस वक्त क्या गुजरती है? बस बिलाल भाई क्या बोले, नहीं बोले। नहीं वो यही हालत है सबके लोगों का, देख के अपना अपना रवैया अलग होता है। जी, हर एक का ज़र्फ बताता है कि उसका कद क्या है। उसका कद क्या है? कद क्या है? एक जनाब वक्त से अली बचाना है, की- लेकिन मुझे एक बिलाल छोटी सी भाई, बात जो है ना वो बिल्कुल। करने की इजाज़त दीजिए। मैंने कोई ऐसी गस्बा नहीं पढ़ी, वो ओहद हो या बदर हो, जिसमें सहाबियात जो हैं वो सहाबा के लिए पानी लेकर ना जा रही हों और उनकी मरम पट्टी ना कर रही हों। अगर सहाबियात जो हैं वो सहाबा की मरम पट्टी के लिए बाहर निकल सकती हैं, तो हमारे मर्द जो इस उम्मत के मोमिनीन हैं वापस नहीं कर सकते वो दिया हुआ जो मेरे रसूल और सहाबा ने दिया। तो मेरे ख्याल में इस मर्दों को थोड़ी सी हया और शर्म करनी चाहिए। मारने से बेहतर था कि इस बच्ची को अपने कंधों पे उठाते और अस्पताल लेकर जाते। आपका नाम? फातिमा। जी, फातिमा। फातिमा। फातिमा, क्या हुआ था आपके साथ? ये मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। बेटी की शादी की थी? जी, तो मेरा दामाद ऐसा निकला जो बहुत हरामी, वो नशा भी करता था। नशा करता था दामाद आपका? जी, नशा भी करता था, चोरी भी करता चोरी था। भी करता था? जी, तो तो आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? जी, वो डकैतियाँ भी लगाता था। जी, तो उसने जरा ना मेरी बेटी को भी बहुत मारता था। तो उनको जरा ना 2-3 बार हमने बिठाया है, फिर उसको आपने मौका अपने घर दिया। बुला लिया अपनी बेटी को? जी, तो फिर 2-3 बार जरा ना उनको ये बिठाया है, फिर मोकल दे दिया। तो उसने जैसे मोकल लेके गया तो उसको बहुत मारा था उसने। फिर बेटी को मारा? जी, बहुत मारा। फिर दोबारा बेटी आ गई हमारे पास। जैसी बेटी को बिठाया है तो दामाद आ गया, बोला तुम इसकी मोकल दे दो। हमने मोकल उसकी नहीं दी, बोला तुम ठीक हो जाए तो फिर ले लेना। तो उसने बोला मैं तुम्हारे को जान से मार दूंगा। हमने अच्छा, उसने आपको धमकी दी कि अगर मुझे अपनी मतलब मेरी बीवी मुझे वापस नहीं करते हो देती तो आपको मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जी, हमने बोला सही है, तुम जो भी करना है जाके कर ले, जब तुम सही हो जा तो फिर ले जा। तो बोला नहीं, ये इनका कसूर होता है, मेरा कसूर थोड़ी होता है। एक बार उसने कुरान पाक भी उठा लिया। फिर हम कुरान पाक भी देख के हम उनको बेटी मोकल वापस कर दी कि- वापस कर हाँ। दिया। कोशिश उस- आप लोगों ने की कि जी, बेटी का घर बहुत खराब ना कोशिश हो। की। फिर उसने जरा ना जो उनका किरदार था वो करता रह गया। फिर उसने जरा ना ये काम किया, मेरे ऊपर आके तेजाब डाल दिया। किस बात पे आप पे तेजाब डाला? उसने मैं बोला था जो तुम मेरी बीवी की मोकल नहीं देती तो मैं तेरे ऊपर तेजाब डालूंगा। मैंने जब बोला आपने ये उसने तेजाब बेटी डाला, की उस वक्त तरफदारी करने पे? उस वक्त आपकी बेटी उसी के घर में थी? नहीं, मेरे घर पे थी। आपके घर में थी? जी। उसने अपनी बीवी पे नहीं फेंका, आप पे फेंका? जी, मेरे ऊपर फेंका था। बोला मैं तेरे को मार दूंगा तो मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा। तो फिर उसने जरा ना इतनी सी बोतल थी भरी हुई, उसने जेब में डाली हुई थी। मुझे नहीं मालूम आते इसके जो बीवी लेकर आया है, था पीछे से? लेकर आया नहीं लेके आया। तो जैसे मैं बाहर बैठी हुई थी, 1 साल का बच्चा मेरे साथ था। तो उसने जरा ना आकर देखा इधर इधर। तो मैंने बोला शायद आया हुआ है, तो ये बोला है जो मेरी सास बैठी हुई है मैं इसके हाथ पाँव पकड़ के मोकल दे देगी। मैं ये सोच रही तो उसने जरा ना आके तेजाब की बोतल पूरी मेरे ऊपर पलट दिया। जैसे तेजाब फेंक के वो अपनी जूती भी छोड़ के चला गया और वो बोतल तेजाब वाली उस वक्त खाली घर पे करके कौन चला कौन गया। था? मेरी बेटी बड़ी जो मेरे पास आई हुई थी वो सोई हुई थी, छोटी बेटी खेल रही थी घर में। मेरा मियाँ काम पे चला गया, वो डिफेंस में। मेरे बच्चे छोटे थे, वो पढ़ने चले गए। आपने लोगों को पुकारा होगा अपनी मदद के जी, लिए? जैसे मेरे ऊपर उसने तेजाब डाला तो मैं वैसे धार चीखी। पिटो के चीकड़े निकालिए तो ये मेरे कपड़े पूरे जल गए थे।
मेरा पूरा ये चेहरा जी, 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 बिल्कुल जला हुआ है पूरा आपके जल गया था। उसने आके उसने मेरे को उठाया है, वो अस्पताल लेके गए थे। मेरे मियाँ से फ़ोन किया है, बोला तेरी बीवी का बचना मुश्किल है, तुम जल्दी से आ जा। फिर मेरा मियाँ ढूंढते ढूंढते आ गया। अभी तक भी वो धमकियाँ दे रहा है, बोलते मैं तेरे को जान से मार दूंगा। कोई कुछ नहीं कर रहा। पुलिस वाले आए तो उसको पुलिस तक गई आप, रिपोर्ट करवाई? जी रिपोर्ट भी करवाई है, सब कुछ करवाया। पुलिस वाले पैसा खा के उसको पकड़ा है। फिर उसने दोपहर के टाइम से उसको उठाया है, रात को 11 बजे उसको छोड़ दिया पैसा खा के। कोई आगे सुन नहीं रहा। गरीबों को कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। गरीबों के साथ ये हाल हो रहा है, जो हाल हो रहा है ये औरतों के साथ हो रहा है, मर्द के साथ तो कोई नहीं हो रहा ना। अब आपकी बेटी आपके घर पे? जी मेरी बेटी मेरे पास है, उसकी छोटी बच्ची भी है 2.5 साल की। आपने एक लड़की को रुखसत किया जी और अब आपके घर में वो 2 लड़कियां आ गई, जी एक आपकी बेटी और एक उसकी बेटी, जी और अब तलाक हो गई है। जी उनकी तनसीख डाली थी। हाँ। तो फिर जरा उनके पास जैसे नोटिस भी गया, सब कुछ गया, वो नहीं आए। फिर उसने उनके तलाक नहीं दी। अच्छा, इसमें एक बात आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ, ये जो लड़का है ना, इसका बदला पुलिस ने नहीं लिया। और मेरी दुआ पता है क्या है कि इसका बदला पुलिस ना ले। क्योंकि हमारे इस मुल्क के अंदर जिसको हम सास और ससुर कहते हैं, ये इंतहाई नामाकूल लफ्ज़ है, ये हमारे लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये तुम्हारे माँ बाप हैं। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, खुदा कहता है जब वो रोज़े क़यामत मेरे सामने आएगा तो मैं अपना चेहरा उससे फेर लूँगा। अगर उसका बदला दुनिया में मिल गया ना तो सज़ा पूरी हो जाएगी। दुआ करो कि कोई तुम्हारा दुनिया में साथ ना दे, ताकि आखिरत में जब तुम खुदा के पास हो तो तुम अल्लाह से इंसाफ मांगो और वो तुम्हारे सामने खड़ा इसका बदला दे रहा हो। आपकी क्या कहानी मेरी माँ? थाने पे फोन करते हैं, थाने वाले भी नहीं कुछ सुनते नहीं हैं। होना। नंबर उनका दिया है तो हाथों उनको मालूमात कर दिया, जो वो तुम्हारे पीछे नहीं वो होना। कुछ कर रहे हैं, तो वो भाग गए थे। वो फिर वो वापस आ रहे हैं, कराची में है। ठीक। आपका नाम बेटा? आपका नाम? रुकैया बीबी। रुकैया बीबी। रुकैया, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे शौहर ने ना चंद पैसों की वजह से मुझ पे तेजाब डाला है, मुझ पे और मेरे चंद बच्चे। पैसों मतलब मैं वो काम तो खुद करता नहीं था, काम मैं खुद करती थी। कितना अर्सा शादी को? 10 साल हो गए। 10 साल? जी। 10 साल में कोई काम नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं करता था। आपको घर कैसे चलता है? ये काम करती थी? ये मैं खुद काम करती थी। आप काम करती? जॉब करती थी आप? जी मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, मैं घर में भी काम करती थी। जी। फिर तो मैं खुद घर का किराया भी भरती थी। माशाल्लाह से मेरे 4 बेटे हैं, मैं उनको भी मैंने पढ़ने डाल दिया था, तो घर भी किराए का था। वो कह रहा था, मैंने ना मतलब छोटी कमेटी डाल दी थी मामू लोगों के साथ। मैंने कहा बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनका खर्चा भी ज़रूरत होगी ज़्यादा। तो उस अभी पहला महीना शुरू ही हुआ था, कह रहे थे जाके मामू लोगों से पैसे ले आओ। जो कमेटी के डाले हुए हैं, वो वापस ले आओ। कमेटी तो मामू लोग कहने लगे अभी तो जमा भी नहीं हुई और आप आ गई कि मुझे पैसे दे दो। मेरे पास तो नहीं है, अगर जमा होते भी तो मैं नहीं देती। आपने कितनी बार इसे काम दिलवा के दिया, कोई काम नहीं करता, तो क्यों अपने बच्चों की रोज़ी के पीछे लगी हुई कि वो ये भी पैसे ले उड़ा देगा। जुआ भी खेलता था और नशा भी करता था। तो मैंने आई घर, मैंने कहा वो मामू लोग तो दे ही नहीं, पहले से तो वो जमा ही नहीं हुए। तो कहने लगा तूने झूठ बोल के आ गई, तो वो लोग क्यों नहीं देते पैसे, हम भी दे रहे हैं। मैंने कहा आपकी कमाई हो तो आप बोले, मैं तो खुद कमा रही हूँ, अभी तो पैसे जमा भी नहीं हुए। तो इसी वजह से कि तूने झूठ बोला, तूने मेरी बेइज्जती की है। उसके भाई भी आ गए, तो भाई के भाभी तूने हमारे भाई की बेइज्जती की। मैंने कहा भाई किस बिना पे मैंने आपके भाई की बेइज्जती की? आपका भाई बता दे कि मैंने इसे आप कुछ कमा के दिया है, तो वो मुझे नहीं दे रही। तो अच्छा, यहाँ उन्होंने बेइज्जती महसूस नहीं की कि भाई काम नहीं करता और अपनी बीवी का माल खा रहा है? यहाँ बेइज्जती नहीं उनकी हुई? नहीं, बेइज्जती ये हुई कि बीवी माल और लाकर हमारे भाई को क्यों नहीं दे रही? पहले तो सलाम करें ना उन तीनों मर्दों को जो आपके पास आए, जिनकी मर्दानगी ये थी कि बीवी और भाभी कमा कर दे और हमारा भाई माशाल्लाह ताला खाए उसको। तो मैंने इनकार किया। तो रात के 3 बजे मतलब 2 भाई आए, मैं दूसरी मंजिल पे रहती थी, तो मैं रात के 3 बजे थे, मुझे जाग हो गई। मैंने देखा है वो जाग रहा है। मैंने पूछा कि खैरियत आप क्यों जाग रहे हैं? कह रहे वैसे आप सो जाए, मुझे नींद नहीं आ रही। तो जैसे मैं वैसे अपनी जगह पे आके सो गई पानी पी के। तो मैं जैसे सोई, मेरी आँख तो नहीं लगी, मुझे बेचैनी सी हो रही थी। तो ये उठ के ना बहर की तरफ गया। बच्चे भी आपके पास थे? जी, मेरे बच्चे 4 मेरे साथ सोए हुए थे। तो ये बहर की तरफ गया, मैंने जैसे देखा इसके भाई थे 2, बात इससे कर रहे थे। तो इसने उन लोगों ने कुछ दिया भी, मैंने इस बात को गौर नहीं किया ये क्या चीज़ देने सकती है एक औरत के इस तरह। मैंने ये तो कभी देखा नहीं तेजाब क्या है, ये क्या चीज़ जला देती है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था।
तो जैसे ये पीछे मुड़ने लगा ना लेके, तो मैं दबे पाँव अपने जगह पे आ गई। जैसे मैं आए सोई तो ये वाशरूम की तरफ गया, वाशरूम में ना इसने मग्गे में ये तेज़ाब डाला, ये मेरी तरफ आया। तो मैं हैरान हो के देख रही थी कि ये मेरी तरफ क्या ला रहा है पानी भर के, वो भी मग्गे में, वाशरूम के मग्गे में। जैसे आया मेरा बच्चा छोटा वाला 2.5-3 साल का था, वो मेरे साथ सोया था, बड़ा वाला भी, तो उसने तेज़ाब डाला तो एक साइड मेरी जल गई, तो जो बाकी तेज़ाब बच्चा डाला फेंक दिया आपको? तो फेंक दिया। बच्चों के ऊपर नहीं गिरा क्या? नहीं, 2 बच्चे भी जल गए, छोटा ओए, खुदा, अपने बच्चों पे भी डाल दिया? जी बच्चे भी। बस मैं इतना देख सकी कि मेरे बच्चों से ना जैसे धुआं निकल रहा है सर से। तो मेरा मामू लोग चीख पुकारने पे, ये साथ में लोग भी रहते थे और साथ में मामू का घर भी था, वो आए चीखने पे, तो मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे। जब लोग, तो मामू ने अपना रुमाल उतार के डाला मामू को, वो रुमाल अम्मी ने मुझे गले लगाया, मेरी अम्मी की पूरी छाती जल गई। एक मर्द की वजह से, सिर्फ एक औरत नहीं, उसकी माँ, उसके बच्चे, और सिर्फ गुस्सा। बिलाल भाई, ये कौन मर्द है? ये किस माशरे में पैदा हो गए हम लोग? मेरे पास तो कुछ नहीं कहने के लिए। मेरे बच्चे के कीड़े पड़ गए थे, मुझे तो 9 महीने होश, जख्मों में मुझे तो 9 महीने होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मेरी बहन टैंक रही। साहिब औलाद हैं सब लोग, खुदा की कसम, बच्चे को टीका लगे ना तो मैं नहीं देख सकता। इस माँ के बच्चे जिसको बाप ने जिनके ऊपर तेज़ाब डाला, उसके जख्मों में कीड़े पड़े हैं और माँ उनका इलाज कर रही है, बाप नहीं कर रहा। उसके बाद उस शख्स ने अपने बच्चों से मुलाकात की? नहीं, वो 3 साल से फरार था, पुलिस ने कुछ भी अब पकड़ा गया? पकड़ा गया। मैंने भाग दौड़ की, उन लोगों ने, मैंने 3 का नाम लिखवाया, उन लोगों ने 1 का नाम लिखा, खाली मेरे शौहर का। कह रहे कि वो नहीं थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे देवर भी साथ में थे। मेरे मियाँ को 2 साल के बाद अभी 5-6 माह हुए हैं, अभी लाए, अभी धमकियाँ दे रहे हैं कि आप लोगों पे ऐसा केस डालेंगे कि आपका निकलना मुश्किल हो जाए, आपकी बहनों पे तेज़ाब डाल देंगे, आप केस छोड़। बहन ये बताओ, अब तुम खुद कमाती हो और अपने बच्चे पालती हो? मेरा छोटा बेटा है, वही कमाता है। मैं 12 साल का है, वो काम 12 साल का बेटा कमा के लाता है? जी, वो काम भी दर्जी का सीख रहा है और कब्रों पे पानी भी डालता है। एक माँ ने कितने ख्वाब देखे थे अपने बच्चों के लिए, और आज एक 12 साल का बच्चा जो कब्रों पे पानी डाल रहा है और दर्जी का काम सीख रहा है। मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। अब एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं जनाब। ब्रेक नहीं, इस बहन की छोटी सी कहानी सुन लें। आपका आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नियाज़ बानो है। न्याज़ बानो, क्या हुआ था न्याज़? ये मेरे शौहर ने एसिड डाला था मेरे पे। शौहर क्यों? ने? क्यों? ये मेरी दूसरी मैरिज थी, पहले शौहर की मेरी डेथ हो गई थी। जी, अच्छा, उनसे मेरे 4 बच्चे थे। तो पहले जॉब करती थी मैं, माँ बाप जिंदा थे तो शादी नहीं करी 13 साल। माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बहनोई ने शादी करा दी। उन्होंने अच्छा देख के कराई थी, अच्छे थे बहुत, उनको भी नहीं मालूम था कि इस तरह होगा। क्या मिजाज था आपके शौहर का? मिजाज अच्छा भी बहुत था और गुस्सा भी था। गुस्सा भी बहुत आता था कि चीज़ें घर की तोड़ फोड़ देते थे। उनके भी 6 बच्चे थे, उनके भी 6 बच्चे मैंने पाले उनके हैं। 6, इनके 4, 10 तो वैसे ही। आप पे तेज़ाब क्यों डाला? मेरे एक बेटी की शादी मेरे बहनोई ने करा दी थी। 15 साल की उम्र थी उसकी, कि भाई दूसरा बाप होता है तो पता नहीं किस तरह हो, तो मेरी बहनोई ने शादी कराई। अच्छा बेटी किया। की। बच्चे 2 बेटे छोटे थे मेरे, तो एक कुरान हिफ्स कर रहा था और एक 8 में पढ़ रहे थे। तो कहने के मैं खिला नहीं सकता इन बच्चों को, और एक बेटी थी मेरी। आपके बच्चों को खिला नहीं जी, सकता? आपके बच्चे ये लोग जॉब करें। अब पढ़ाई उन्होंने छोड़ी तो लियाकत मार्केट में वो आपकी बात को यहाँ रोकूंगी, आगे लेके चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन और अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे।